جدید پاکستانی پاسپورٹ کیا ہے؟ بیرون ملک سفر کے لیے پاسپورٹ بہت ضروری ہے۔ دنیا بھر میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے پاسپورٹ کی پہلے بھی بنیادی حیثیت تھی، لیکن اب مزید اہمیت بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں 11 ستمبر کے واقعات کے بعد مسلمانوں، خاص طور پر پاکستانیوں کو نہایت ہی تلخ قسم کے تجربات سے گزرنا پڑا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات کے بعد عالمی سطح پر کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور بیرون ملک آمد و رفت کے حوالے سے پابندیاں نہایت ہی سخت کر دی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا بھر میں پاسپورٹ کو جیل سازوں سے بچانے کے لیے ہر ممکن طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے۔ آج سے 40 سے 50 سال پہلے کے حالات پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ پہلے جاری ہونے والے پاسپورٹ نہایت ہی سادہ ہوا کرتے تھے۔ عام سے کاغذ پر عام سی مہروں کے ساتھ اندراجات ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔ بلیک اینڈ وائٹ تصویر گوند سے چسپاں کی جاتی تھی۔ یہ کہیں سے بھی اہم دستاویز معلوم نہیں ہوتی تھی۔ یہ تمام انتظامات اتنے سادہ ہوتے تھے کہ جعلساز آسانی سے ان کی نقل تیار کر لیتے تھے۔ وہ دور سادگی کا دور تھا جس میں جعلسازی زیادہ عام نہیں تھی۔ بیرون ملک جانے کا رجحان موجودہ دور میں زیادہ ہوا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں جعلی پاسپورٹوں کا کاروبار کافی بڑھ گیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل بننے والے پاسپورٹوں میں غلطیوں اور بدعنوانیوں کی کافی گنجائش موجود تھی اور جعلساز آسانی سے اس میں رد و بدل کر لیتے تھے۔ ان تمام مسائل اور پریشانیوں کے پیش نظر حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے نئے کمپیوٹرائزڈ پاسپورٹ کا اجرا کرے گی، جس میں فراڈ اور بدعنوانیوں کی گنجائش کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا۔ نادرا کے چیئرمین بریگیڈیئر ریٹائرڈ سلیم احمد معین کے مطابق نیا مشین ریڈیبل پاسپورٹ بنانے کا یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص اپنا پاسپورٹ بنوانا چاہتا ہے تو وہ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پیش کرے گا جو کہ ایک مشین سے گزرے گا اور اس شخص کے متعلق وہ تمام معلومات کمپیوٹر اسکرین پر آ جائیں گے جو اس نے شناختی کارڈ بنواتے وقت فراہم کی ہوں گی۔ پھر متعلقہ اہلکار اس شخص کی تصویر کو شناختی کارڈ پر موجود تصویر سے ملائے گا اور پھر فنگر پرنٹس کو بھی اس مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ اس کے بعد کمپیوٹر کے ذریعے اس کے بارے میں تفصیلات درج کی جائیں گی اور تصویر کھینچی جائے گی۔ یہ تمام کام منٹوں میں ہی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص کو پاسپورٹ کے ملنے کی تاریخ دے دی جائے گی۔ نئے پاسپورٹ صرف اسلام آباد میں پرنٹ ہوں گے۔ چنانچہ ہر شہر میں پاسپورٹ بنوانے کے لیے جو ڈیٹا جمع ہوگا وہ اسلام آباد ہی بھیجا جائے گا اور پھر پاسپورٹ پرنٹ ہونے کے بعد متعلقہ پاسپورٹ آفس بھیج دیے جائیں گے جہاں سے متعلقہ افراد اپنے پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ چیئرمین نادرا کا کہنا ہے کہ نئے نافذ ہونے والے پاسپورٹ کی تیاری کا یہ نظام سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے جس کی ٹیکنالوجی پاکستان میں ہی تیار کی گئی ہے۔ تاہم اسے بنانے کے بعد مشینی آلات
बैरून मुल्क से दरामद किए गए हैं, जबकि ये पूरा निज़ाम नादरा के अमले का तैयार करदा है। इस वक्त नादरा के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबा में 7,000 से जायद अफराद काम कर रहे हैं और अमला रोजाना 1 लाख कंप्यूटराइज्ड कार्ड प्रिंट कर रहा है। पासपोर्ट के रंग के हवाले से सलीम अहमद मोइन ने बताया कि आम अफराद के पासपोर्ट का रंग सब्ज रखा गया है, जबकि सरकारी शख्सियात को नीले और सफारतकारों को सुर्ख रंग के पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट सिर्फ एक सफ़े पर मबनी होगा जिसमें तमाम मालूमात का अंदराज किया जाएगा। ये पासपोर्ट 5 साल तक कारआमद रहेगा। नए पासपोर्ट जारी हो जाने के बाद पुराने पासपोर्ट ख़त्म कर दिए जाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को नादरा के स्विफ्ट सेंटर पर यह सहूलत फराहम की जाएगी। नए पासपोर्ट चूँकि सिर्फ मशीन के ज़रिए ही चेक किए जाते हैं, इसलिए तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर उन्हें पढ़ने वाली मशीनों की ज़रूरत होती है। नादरा ने तमाम ज़रूरी सहूलियात और आलात पर मबनी एक इमिग्रेशन काउंटर बनाया है, जिस पर तकरीबन 8 लाख रुपए की लागत आई थी। इसमें कैमरा, फिंगरप्रिंट लेने वाली मशीन, पासपोर्ट का डाटा नादरा के डाटा से मिलने वाली मशीन से मुंसलिक हैं। जो ही कोई शख्स काउंटर के सामने जाता है, खुद कार कैमरा उसकी तस्वीर बना देता है, फिर उसका पासपोर्ट मशीन से गुजरता है और उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। अगर ये तमाम डाटा नादरा के रिकॉर्ड डाटाबेस से मिल जाता है तो काउंटर की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है और उस शख्स को काउंटर से गुजरने की इजाज़त होती है। अगर डाटा नहीं मिला या उसमें कोई मुताबिकत ना हुई तो खिड़की नहीं खुलेगी और खुद ब खुद सायरन बज जाएंगे। ये तमाम मराहल जाली तस्वीर और फिंगरप्रिंट के अमकानात को बहुत ही कम कर देते हैं। पासपोर्ट को चेक करने के लिए खसूसी आलात की ही ज़रूरत होती है। उनकी मदद से पासपोर्ट के कारआमद रहने की मियाद भी चेक की जा सकती है और उस मुल्क से बाहर जाने और मुल्क में दाखिल होने का वक्त भी नोट कर लिया जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी ने आवाम को बहुत सी सहूलियात मुहैया की हैं। ये पासपोर्ट भी जदीद टेक्नोलॉजी का अहम तरीन शाहकार हैं। इसमें जालसाजी की गुंजाइश होने के अमकानात बहुत कम हैं। अगर कहीं जालसाजी हो भी गई तो उसे फौरन ही पकड़ा जा सकता है, यानी फौरन ही उसकी निशानदही हो जाएगी। इन पासपोर्टों की तैयारी में ख़ास किस्म का कागज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तस्वीर भी ऊपर चस्पा करने की बजाय प्रिंट की जाती है, जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। मौजूदा पासपोर्ट का डाटा सिर्फ एक ही सफ़े पर महफूज होता है, जबकि पुराने पासपोर्ट का तकरीबन 36 सफ़ात पर मुश्तमिल होता था। अब नया पासपोर्ट सिर्फ उन अफराद को जारी किया जाएगा जिनके पास कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड होंगे। नादरा के डेटाबेस में हर उस शख्स के फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं जिन्होंने कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड बनवाया है। फिंगरप्रिंट्स के बारे में कहा जाता है कि हर शख्स के फिंगरप्रिंट दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होते हैं। इस तरह जालसाजी के अमकानात तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। नए पासपोर्ट की तैयारी में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसे बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं।
इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर में फ्रॉड की शनाख्त वसी पैमाने पर की जा रही है। बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके किसी फर्द की सिर्फ आंखों और नाक के जरिए पूरा चेहरा शनाख्त कर लिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक हर इंसान के चेहरे के नकूश 10 साल के बाद तब्दील हो जाते हैं। यही वजह है कि नादरा ने जो शनाख्ती कार्ड जारी किए हैं उनके मनसूख होने की तारीख का इन्हिसार उम्र पर है। नादरा के मुताबिक अगर किसी शख्स ने अपना शनाख्ती कार्ड मनसूख हो जाने के बाद दोबारा नहीं बनवाया तो नादरा के डेटाबेस में उस शख्स को मुर्दा तस्वर किया जाएगा। अगर नया शनाख्ती कार्ड बनवा लिया गया तो चेहरे में आने वाली तब्दीली नादरा के रिकॉर्ड में महफूज हो जाएगी। बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी की एक सहूलत ये भी है कि चेहरे पर अगर कोई तब्दीली की गई हो, खा वो कुदरती हो या मसनूई, उसे पहचाना जा सकता है। नया पासपोर्ट बनाने की तमाम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुल्की सतह पर तैयार की गई है। ताहम अमेरिका और बरतानिया की कंपनियों ने भी इसमें गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान में अगर किसी इदारे ने PTCL के बाद वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तरक्की की है तो वो नादरा का इदारा है। कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में रहने वाले लोग इस कदर जदीद, सहल और बरक रफ्तार तरीक़ाकार से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। कौमी शनाख्ती कार्ड के बाद अब पासपोर्ट का हसूल जिस कदर आसान हो गया है, ये अपनी जगह और इसकी अफादियत में गिरां कदर अज़ाफ़ा अपनी जगह। एक तरफ तो दफ्तरों के चक्कर काटने से लोगों की जान छूटी तो दूसरी तरफ जामे डाटा भी जमा हुआ। अगर हम ये समझें कि इस निज़ाम के आने के बाद इसमें खामियां भी पाई जाती हैं तो भी ये आसन कदम साबित होगा, क्योंकि पुराने निज़ाम की अब कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। उम्मीद है माहिरीन इसमें आने वाली पेचीदगियों से निपटने की पूरी सलाहियत रखते हैं और इस बात का कोई इम्कान नहीं कि ये ख्याल किया जाए कि पासपोर्ट के इजरा का पुराना तरीक़ाकार नए निज़ाम की खामियों का मुतबादल होगा।